have started with analyzing the structure of ozone. Ozone can have two possible structures, and दोनों structures में हम bond parameters जब study किया, either you can have bond order 2 or bond order 1, or you can have bond energy which is having bond order as 2 will be having greater bond energy when compared to the other bond energy. Bond length के comparison में एक bond length ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा bond length कम होना चाहिए. More is the bond order, less will be the bond length. जितना ज़्यादा bonds रहेंगे दो atoms के बीच में, उन दोनों के बीच में attractive forces ज़्यादा रहेगा, correspondingly उन दोनों के बीच में distance कम हो जाएगा. Okay, so we have identified different bond parameters. ओके स्ट्रक्चर ए के कंसीडर किया तो कुछ पैरामीटर्स आएंगे, स्ट्रक्चर बी कंसीडर किया तो एग्जैक्टली उसका उल्टा आया हमें. ओके बट व्हेन वी स्टडीड द एक्चुअल स्ट्रक्चर there are no different bond orders, there are no different bond lengths, and there are no different bond energies. Bond energies E1 equals to E2 हुआ, bond length L1 equals to L2 हुआ और bond order 1.5 आया. हमने ऐसा कुछ बात किया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए we need to take average of both the two. Structure A or structure B का average लिया तो then we can explain that. Okay, so structure A and B are not the actual structures, they are imaginary structures, or they are called as resonating structures. Structure C जो draw किया हमने, that is the actual structure, or it is called as resonance hybrid. Resonating structures are also referred to as canonical structures. अभी A और B जो है, very important, understand this, A and B are identical. Hence हमने exact average किया by considering 50-50% contribution. Okay. Similarly CO3 2- में हमने 3 structures बनाया और तीनों structures identical था. Okay, so उसमें भी contribution 1/3, 1/3, 1/3 हुआ. If the structures are not identical, we are explaining this resonance. Why is resonance happening? First of all, in order to attain stability, right? Stability कैसे आया? By distribution of charge. The charge can be in the form of pi bond or in the form of negative. Okay, either pi bonds को distribute किया हमने या negative charge को distribute किया. And this distribution is happening via weak pi bonds. In resonance, the basic difference between resonance and inductive effect is, in inductive effect, there is just shifting of the electrons. Okay. But in case of resonance, there is transfer of electrons. Asta? Sorry. Yeah. In case of resonance, there is transfer of electrons. In case of inductive effect, there is shifting of electrons. Okay, the transfer of electrons is happening through weak pi bonds. Pi bonds are weak bonds. Why are pi bonds weak bonds? Because they are formed by sidewise overlap. Sigma bonds are strong bonds because they are formed by head-on overlap. Okay, so weak होने की वजह से उसके थ्रू कुछ शिफ्ट करवा रहे हैं हम, एंड वो शिफ्टिंग का प्रोसेस भी हमने देखा है लास्ट लेक्चर में. In ozone and in CO3 2-, the resonating structures are identical, hence they are contributing to same extent. If they are not identical, तब आप लोग लॉजिकली सोचा तो जिस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ओवरऑल हम क्यों रेजोनेंस करवा रहे हैं? टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी. ओके, सो द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर which is having more stability will be contributing most. वो जो परसेंटेजेस से इक्वल होने की जरूरत नहीं. सपोज दो स्ट्रक्चर्स है, एक 80% कंट्रीब्यूट करके दूसरा 20% ही कंट्रीब्यूट कर सकता है ओवरऑल हाइब्रिड में, या एक 99% कंट्रीब्यूट करके दूसरा वाला बहुत स्टेबल होने की वजह से 1% ही कंट्रीब्यूट कर सकता है. समझ में आ रहा है? We will be forming resonance hybrid by taking the contributions of, आदित्य तुम भी अपना वीडियो ऑन रखना, अपूर्वा, आदित्य. सर वो नेट कम है इसलिए वो स्टेबल नहीं है. ठीक है, कोई बात नहीं. Okay, so we will be forming the resonance hybrid by taking the contributions of the individual resonating structures. So in the last lecture, I'm sharing my screen. In the last lecture, we have seen the mechanism of resonance. First, we have understood why is resonance happening. उसके बाद we went to the question, when will resonance happen, right? उस when के केस में हमने definition लिखा conjugation.
all systems which are in conjugation or resonance will occur in all those systems which are conjugated. Conjugate का मतलब क्या है? You need to have symmetric तो सर आपको वॉइस नहीं आ रहा है. Sorry, it got disconnected. Yeah. So S, PX, PY, वो थर्ड कार्बन के ऊपर भी हाइब्रिडाइजेशन S, PX, PY, PY, PX, PY आ रहे तो PZ है इसके ऊपर, so इसके ऊपर भी PZ ही रहना पड़ेगा, then only you can have pi bond. So based on the analysis of hybridizations, हमने ये conclusion पे आया, इनके ऊपर you are having symmetric p orbitals adjacent to each other. Okay. Then we have shown the pi bond as orbitals. So इसके दोनों के बीच में overlap है, इन दोनों के बीच में overlap है. We have started migrating the electrons from one orbital to another orbital. And ये possible क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों आजू बाजू में है. And the capacity of any orbital, maximum capacity is 2 electrons. यहाँ पे overlap हुआ, completely jump किया तो यहाँ पे खाली हो जाएगा, यहाँ पे 2 electrons आ जाएगा. Right? Everyone? Yes, sir. Okay. So वैसा हम मूव करते हुए different resonating structures draw किया. Now everyone please observe. Are these all structures identical? No. No, right? सब लोग मानते हो? हाँ सर. हाँ सर. If you take these structures, ये वाला, इनको थोड़ा names भी दे देते हैं. इसको 1 mark कर लेते हैं. This is structure 1. This is 2, 3, 4, 5. The 6, it is again similar to 1, right? 6, 7, 8, 9, 10. If you take structures 2, 5, 10, and 7. 2, 5, 7, and 10. ये चार एक जैसा है. They are having one positive and negative, and they are adjacent to each other. Positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative. ये चार एक जैसा है. Yes sir. And structures 3 and 8, both of them are alike. ये और ये एक जैसा है. Okay. Structures 4 and 9. Structures 4 and 9, these two are similar type. Okay. समझ में आ रहा है? And structure 1 और 6, ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों exactly same है. So out of all these structures, structure 1 and 6 will be contributing to the overall resonance hybrid to the highest. 1 और 6 दोनों same ही है. So structure 1 जो है ना, it will be contributing to the resonance hybrid to the highest amount. Reason, बाकी structures में charges आ रहे हैं ना, charges आ रहे हैं तो it will be unstable. This entire structure is neutral. समझ में आया? हाँ सर. हाँ sir. We will in further classes we will write some rules for judging the stability of the resonating structures. For now I am just giving you an idea on how to compare the stability of resonating structures. The idea is, in the system, if the charges are more and more, it is in general unstable, or its contribution will be least. Clear? Yes, sir. Okay. So one's contribution is highest, followed by 2, 5. देखो 2, 5 और 7. 2, 5, 7 इनका contribution एक जैसा रहेगा. 4 और 9 में, ये और इसमें, इन दोनों में भी 2 चार्जेस ही है.
बट क्या हुआ इसमें अनलाइक चार्जेस जो भी है दूर है ना, इसमें अनलाइक चार्जेस पास में है, तो बेटर कौन होगा? अनलाइक चार्जेस पास में। अनलाइक चार्जेस पास में, क्योंकि इन दोनों में 2 चार्जेस ही है, बट 4 and 9 में द अनलाइक चार्जेस आर फार फ्रॉम ईच अदर, बोथ ऑफ देम आर आइडेंटिकल अगेन, बट इन 2, 5 and 10 the unlike charges are close to each other, so 2, 5, 10 is better. Okay, structure 3 and 8, they are the least contributors. They are the least contributors because they are having highest amount of charges. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so overall हम अगर रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ किया तो ओवरऑल हम रेजोनेंस हाइब्रिड, एक बार देखो इन सबका एवरेज जैसा कुछ लेना है, बट नॉट द एग्जैक्ट इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये जो पाई बॉन्ड है सबके बीच में आ रहा है, देखो इन दोनों के बीच में यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में इस स्ट्रक्चर में है, इस स्ट्रक्चर में है। ओके, सो द पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन ईच एंड एवरी कार्बन। Yes. सो रेजोनेंस हाइब्रिड अगर मैं ड्रॉ किया, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कार्बन 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 सबके बीच में सिग्मा बॉन्ड तो है ही है। ओके, द पाई बॉन्ड is present in between each and every carbon। ओवरऑल देखा तो इन 2 कार्बन में यहाँ पे है, इन 2 कार्बन पे इस स्ट्रक्चर पे है और इस स्ट्रक्चर पे है। सो रेजोनेंस हाइब्रिड में इफ दे आर कंट्रीब्यूटिंग, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। As this is contributing to the highest amount, I can say more density will be present between these carbon than this carbon, than these two. Can I say that? Yes, sir. सर एक बार वापस बताओ ना। I am saying as one is contributing to the highest amount and 4 and ये जो 9 इनका contributions इसके comparison में कम है। हाँ अगर ये contribute ज्यादा करते तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड ज्यादा आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, हाँ तो इसमें इन दोनों के बीच में ज्यादा है पाई बॉन्ड, सो यहाँ पे पाई बॉन्ड ज्यादा रहेगा। इन वन द पाई बॉन्ड इज बिटवीन दिस टू दिस सेट ऑफ कार्बन्स एंड दिस सेट ऑफ कार्बन्स। सो ओवरऑल रेजोनेंस हाइब्रिड में भी आपको यहाँ पे ज्यादा रहेगा ना डेंसिटी, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, इसके जैसे ज्यादा दिखेगा। हाँ सर समझा। समझा? हाँ सर। Okay, so if I am marking this as some कुछ लेबल कर लेते हैं x, y and z। Okay, bond order of x as it is symmetrical, एक जैसा है ना ये दोनों, I can say bond order of x must be equal to bond order of z, which will be greater than, दोनों का bond orders will be greater than bond order of y। Yes, sir. Any doubt? नो सर। चार्जेस क्या करेंगे, ओवरऑल यहाँ पे चार्जेस कुछ मेंशन ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इनका कंट्रीब्यूशन एक जैसा होके ये नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो गया। समझा? इसका कंट्रीब्यूशन में यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस हुआ। ये दोनों एक जैसा है ना, इनका कंट्रीब्यूशन एक जैसा रहेगा, है कि नहीं? Yes, sir. ये दोनों एक जैसा है, इनका कंट्रीब्यूशन एक जैसा रहेगा, है कि नहीं? ये हाँ। दोनों एक जैसा है, इनका कंट्रीब्यूशन एक जैसा रहेगा, सो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों एक जैसा है, सो ओवरऑल चार्जेस इसमें दिखाएंगे ही नहीं। ओके, सो इस मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी जो भी आया दैट इज बिकॉज ऑफ, क्योंकि एवरीवन कॉमन सेंस क्या कहता है, इनिशियली इसमें चार्जेस नहीं है तो बाद में भी चार्जेस नहीं होना चाहिए। चार्ज है तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट कार्बन्स पे, चार्ज है ही नहीं ना स्टार्टिंग में। व्हाट वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इन दिस केस इज ओनली द पाई बॉन्ड।
ये दो पाई बॉन्ड्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। Initially, this pi bond is controlled by only these two carbons, or this pi bond is controlled by these two carbons. In the resonance hybrid, pi bond मतलब यहाँ पे 2 electrons, यहाँ पे 2 electrons. These 4 electrons are controlled by all the 4 nuclei. इस कार्बन का, इस कार्बन का, इस कार्बन का, इस कार्बन का। ज्यादा कंट्रोल इन इलेक्ट्रॉन्स को ये दोनों कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये दो कर रहे हैं। ओके, Yes, I sir. hope this is clear. We will go to further things. आपको और समझ में क्लैरिटी आता जाएगा। So we explored the question when will resonance happen. और एक एग्जांपल लेता हूँ। The first example which we took is 1,3 butadiene. Next example. Allyl carbocation. First, let us understand what is meant by allyl. Double bond CH bond CH2. यहाँ पे देखो, डबल बॉन्डेड से अटैच्ड कार्बन जो भी रहेगा, डबल बॉन्डेड से अटैच्ड कार्बन जो है, इट इज कॉल्ड एज एलाइल कार्बन। व्हाट इज मेंट बाय कार्बोकैटायन? आपको क्या समझाया? ए कार्बोकैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी, ए कार्बेनियन इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशी, ए कार्बन फ्री रेडिकल इज न्यूट्रल। हम फिशन ऑफ बॉन्ड्स में देखा, याद है आपको? हाँ सर। Yes, sir. दिस कार्बन इज कॉल्ड एज एलाइल कार्बन। ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ना, दिस इज कॉल्ड एज एलाइल कार्बन। एलाइल कार्बोकैटायन का मतलब क्या है? उसके ऊपर इफ यू हैव पॉजिटिव चार्ज, इट इज कॉल्ड एज एलाइल कार्बोकैटायन। इज दिस क्लियर? सर एलाइल का आप वापस एक्सप्लेन करो। एलाइल का मतलब भी ये है, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड कार्बन को एलाइल बोलते हैं, एलाइल। ओके, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड कार्बन को एलाइल कार्बन बोलते हैं। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा तो इट इज कॉल्ड एज एलाइल कार्बोकैटायन। एनी डाउट? No. No, Tell me the hybridizations of these three carbons. Tell me the hybridizations of these three carbons. Last lecture में आपको बताया मैंने। sp2 and sp3. This is sp2. Whenever the carbon is found to have one pi bond, it is definitely sp2. So ये वाला भी sp2। ये जो कार्बन देखो, कार्बन का outermost इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 4, 4। पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटाया, अभी कितना बचा? 3, 3, कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं कार्बन? 3, 3, 3 bonds. If all the 3 electrons are participating in bonding, lone pairs कितना? 1, 0। साइड एटम्स कितना है इसका? 3, 3। साइड एटम 0, लोन पेयर्स। क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन? sp2. sp2। हाँ If you are having any doubt, ask me. इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, all the 3 electrons are utilized for bonding, so you are left with 0 electrons, so 0 lone pairs. Side atoms, the bond pairs are nothing but number of side atoms which are 3. So electron pairs क्या हो गया? 3 plus 0 equals to 3. So hybridization, जितना electron pairs रहता है उतना hybrid orbitals चाहिए. So hybridization has to be sp2. Is this clear? Yes, sir. yes sir. Yes, sir. Okay, so if all of them are sp2, इसके ऊपर pz, इसके ऊपर pz, इसके ऊपर भी pz रहेगा। रहेगा कि नहीं? सर हाँ सर। कार्बन कार्बन कार्बन
इसका pz इसका pz के साथ ओवरलैप होके यू आर फॉर्मिंग ए पाई बॉन्ड। इसके pz के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। ऑब्जर्व दैट, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। दैट इज नथिंग बट पॉजिटिव चार्ज। ओके, what will happen? Electrons will always flow from higher density to lower density. क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करो, तब क्या होगा? What will be the next structure? वहां से शिफ्ट हो गया तो you will be having 2 electrons in this. Okay, अभी the positive charge, अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करवाओ। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होने की वजह से पॉजिटिव चार्जेस, यूजुअली ऑर्बिटल डायग्राम में चार्जेस नहीं दिखाएंगे, you will show the charge in the formula like CH2CH। यहाँ पे CH2 पॉजिटिव आया, यहाँ पे क्या होगा? CH2, अभी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आया नेगेटिव, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव। पॉजिटिव। एनी डाउट? अभी क्या करना है? नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बना दो। ओके, सो दिस विल बी C bond C bond C। यहाँ पे एक हुआ, यहाँ पे एक हुआ, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना। सो इसका स्ट्रक्चर CH2 पॉजिटिव बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एनी डाउट? हाँ सर। Okay, again, why are we doing resonance? In order to get stability. And why are we showing these structures? To explain the stability of the molecule, right? मैंने Yes. क्या कहा? Whenever you are having high number of charges inside the system, that particular structure is not so stable. Okay, so while drawing the resonating structures, it is completely fine if you don't draw the structure. Okay, और यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है shouldn't be drawn, मतलब वो एग्जिस्ट होता है बट उसका कंट्रीब्यूशन विल बी नेग्लिजिबल। shouldn't be drawn as too many charges are present। समझ में आ रहा है? सो क्या करेंगे? इसको ऐसे शो करेंगे। ऑब्जर्व, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। देखो, we will show this representation is, we will be showing an arrow। ये यहाँ से यहाँ पे जंप कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आया है। whenever you see negative and positive side to each other, make a bond। so you will simply write CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव आया क्योंकि इस कार्बन को नुकसान हुआ एक बॉन्ड का, एंड यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आजू बाजू में है। so you will show this। is this clear? एंड यहाँ से इसको बनाने के लिए ये इसके ऊपर उठाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बना, ये बनेगा। क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. So after omitting this structure, can I say these two are two equivalent structures? Yes, sir. So can you tell me the resonance hybrid? It will be CH2 bond CH bond CH2। Can I say यहाँ पे positive by 2, यहाँ पे positive by 2, आधा बॉन्ड आधा बॉन्ड, इनका बॉन्ड ऑर्डर्स कितना रहेगा? Equal. 1.5.
1.5 क्योंकि यहाँ हाँ। पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 3/2 1.5. एनी डाउट? नो सर। नो तो यहाँ पे भी इन स्ट्रक्चर्स को आप ओमिट कर सकते हैं. आपको समझाने के लिए स्टार्टिंग में समझाया, बट इसका कंट्रीब्यूशन विल बी 0.000001%, or else no need to draw the structures only. But if they are asking it is a valid resonating structure, yes it is. Is this clear? यस यस सर। ओके. थोड़ा थोड़ा आपको क्वेश्चंस करते समय और भी क्लैरिटी आएगा. अभी के लिए जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझते रहना. ओके. So the first question is why is resonance happening? The second question is when will resonance happen? When there is conjugation. Okay. Now we will see where will resonance happen. मतलब all possible systems where there is conjugation. मतलब क्वेश्चन देखते ही हम वो सिस्टम है कि नहीं करके आइडेंटिफाई करेंगे. अगर है तो हाँ रेजोनेंस होगा, बता देंगे. बार बार हाइब्रिडाइजेशंस निकाल के ओपीजेड ऑर्बिटल सिमेट्रिक है कि नहीं, वो बार बार चेक नहीं करेंगे. वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? We will see all conjugated systems where there will be resonance. Is this clear? Yes, sir. If you are having any doubt, please ask me now. First system, pi dash indicates alternate. Okay, pi alternate pi. Pi alternate pi. Already इसके लिए एग्जाम्पल देख लिया हमने. एक एग्जाम्पल which is buta 1,3 diene. यही है ना? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. देखो यहाँ पे pi alternate pi. This is called as pi alternate pi. Okay. Very important example. Another example. Very, very, very important. Benzene. What is the structure of benzene? Bond, bond. यही है benzene. See how I will draw resonating structures. देखो ये जो pi bond है ना, ब्रेक करके इस कार्बन एटम के ऊपर लेके आओ. Tell me what is going to happen. नेगेटिव चार्ज. जिस कार्बन एटम के ऊपर ब्रेक हुआ उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज. ओके. जिसके पास से हट गया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. एनी डाउट? No. ओके. No. अब क्या करेंगे, इस नेगेटिव को यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाओ. कार्बन कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड्स, राइट? सो व्हाट विल हैपन इन द प्रोसेस, दिस बॉन्ड हैज टू ब्रेक होना ही पड़ेगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड्स कभी बना नहीं सकता. 5 बॉन्ड्स बनाए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. कार्बन का outermost shell सेकंड शेल ही है, whose maximum capacity is 8 electrons. Is this clear? Yes, sir. Okay. So next structure क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव एंड यहाँ पे नेगेटिव आया. एनी डाउट? नेक्स्ट में क्या करना है बताओ आप लोग. ये यहाँ पे बॉन्ड बनेगा. A negative charge will be forming a bond. A negative charge is nothing but 2 electrons. Everyone, आपको तो पता ही है ना. यहाँ पे बॉन्ड बनेगा. कार्बन अगेन इट कैन नॉट फॉर्म 5 bonds, सो ये ब्रेक करके इसके ऊपर. Anyone having any doubt, feel free to ask me. So यहाँ पे 5 bond, यहाँ पे एक है, यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया. लास्ट स्ट्रक्चर बताओ. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड. सॉरी, यहाँ पे बॉन्ड या और ये क्या हुआ, ये यहाँ पे आया, बॉन्ड बन गया.
Yeah, tell me. Sir, in this second structure, sir, when we Yeah. were making that pi bond into charges, then why did we again make that means plus and minus into pi bond? क्या 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 फिर से बताओ. सर यहाँ पे सेकेंड स्ट्रक्चर में जब वो हाँ. पाई बॉन्ड को कन्वर्ट किया इधर बॉन्ड में पाई बॉन्ड को, यहाँ पे नहीं नीचे यहाँ ये वाला सेकेंड स्ट्रक्चर ये उधर ही जो पाई बॉन्ड है वहां पे. once again चैतन्य, इस स्ट्रक्चर को कंसीडर कर रहे क्या तुम? हाँ सर. ओके, इसमें क्या हुआ? वो पाई बॉन्ड को जब हमने कन्वर्ट किया तो वापस हमने चार्जेस को पाई बॉन्ड में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि ये आगे बढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल है, यहाँ से यहाँ पे जंप कर रहे हैं. मैं यही पे पाई बॉन्ड नहीं बना रहा हूँ, आगे कर रहा हूँ. देखो. हाँ लेकिन क्यों, मतलब वहीं पे अगर प्लस और माइनस में रहते तो नहीं चलेगा क्या? नहीं, आगे मूव करने का चांस है ना. उसके बाजू में एक पी ऑर्बिटल है जिसके मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स है. सो यहाँ पे जंप करवाया. मैं पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सब हो सकता है करके. जैसे इसमें किया ना, जैसे हमने यहाँ पे किया, आगे बढ़ा या ना, ये वाला करके, वैसा ही इधर भी आगे बढ़ा रहा हूँ. मैं मतलब मैं पूछ रहा था अगर वो प्लस और माइनस वैसे ही रहता तो. प्लस और माइनस वैसे ही रहता तो का क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर. हाँ सर. This is one of the contributing structure. I am trying to draw all contributing structures. Is this clear? Yes sir. Everyone? Yes, sir. मैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है करके आई एम ड्राइंग द पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. अभी इसी में आप लोग ये इस साइड ब्रेक किया ना, मैं यहाँ पे भी ब्रेक कर सकता था, वो भी एक स्ट्रक्चर होगा ही ना. ये इस साइड ब्रेक किया तो तब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ऐसा इस साइड आगे बढ़ाते जाओ. ओके, वो भी करके देखे क्या? हाँ सर. ऐसा कुछ है. Now I am breaking this. I am breaking this onto this. तब क्या होगा? I am just drawing valid resonating structures, जो हो सकता है. This is not, as this is not the actual structure, don't worry. वो नेगेटिव और पॉजिटिव वैसा ही रहता तो अच्छा होगा करके, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रक्चर है भी नहीं. ओके, सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या करेंगे? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, सो इस साइड गया तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके इसके ऊपर ब्रेक करवाओ. चैतन्य, एनी डाउट? नो सर. 2 मिनट आप लोग 2 मिनट रुको, समझ में आएगा. नेगेटिव यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा. नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये यहाँ पे आएगा, फिर से कार्बन 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता. यहाँ पे हुआ, so I am drawing different structures. ये यहाँ पे पॉजिटिव, फाइनली क्या होगा? फिर से Positive, negative bond. पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा. सो ये और ये. ओके, एवरीवन क्लियर? Yes. अभी Yes, हम sir. फिर से क्या करेंगे? These structures are having charges. Okay, if you observe, these structures are having charges, so their contribution again will be least when compared to these neutral structures. If you take this structure, let us take this as structure 1, and this structure, this as structure 2. ये दोनों आइडेंटिकल एक जैसा दिखता है बट एक नहीं है. देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस केस में यहाँ पे डबल बॉन्ड है. दोनों एक जैसा दिखता है बट नॉट द सेम. एवरीवन, can you observe that? Okay, so we will be taking resonance hybrid as average of 1 and 2 structures. As इन दोनों का contribution सबसे ज्यादा होगा, इनका contribution बहुत कम होगा because of the charges. Is this clear?
Yes, sir. Yes, sir. So in the resonance hybrid, what we do is ऐसा मार्क करके, और जो पाई बॉन्ड है सारे कार्बन एटम्स के बीच में आ रहे हैं, बताओ। हाँ, पाई बॉन्ड एक के बीच में, इधर इधर, सिमिलरली यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सारे कार्बन एटम्स के बीच में आ रहे हैं, तो कैन आई शो दैट एज डॉट डॉट ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ। हाँ सर, एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन वो मतलब सर्कल होता है ना बीच में। we show benzene as a circle. The circle indicates all the electrons are in resonance. Is this clear? yes, sir. Or this is also called as this is delocalized. Local नहीं है अभी, distribute किया है ना, delocalized pi electron cloud. सर आपको- मतलब या बताओ। हर कार्बन पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। हर कार्बन पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन एग्जैक्ट सेम है, डिवाइड बाय 2। सो हर एक के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बताओ, 1.5। ओके, हाँ सर। 3 बॉन्ड से 6 के बीच में बांटना है हमें, 3/6 1/2। ऑलरेडी 1 बॉन्ड है, 1 + 1.5, सॉरी 1 + 0.5 विच इज 1.5। क्लियर? हाँ सर। आपको और बेटर तरीके से ड्रॉ करके दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। देखो, देखो ऐसा कुछ चाहिए। The benzene, I am visualizing this. It is present on this paper and it is coming out of the plane. Okay, as this is coming out of the plane, ये वाला part मैं bold कर रहा हूँ। The one which comes out of the plane, वो हम अच्छे से देख सकते हैं ना, इसलिए उसको बोल्ड करके दिखा रहा हूँ। ओके, सो ऐसा कुछ है। It is coming out of the plane and this part is going into the plane. Okay, so everyone, ये plane of paper जो है, take that as z axis. Okay, so xy plane will be perpendicular to this. The benzene ring is present in the xy plane. Okay, everyone. Yes. Okay, so pz orbital जो भी रहेगा, ये रहेगा pz orbital।
ओके क्या हुआ एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है सब अपने आप में मिल गए हैं ना। all these clouds, everyone observe, all these clouds have intermixed among themselves, okay, and they have distributed. ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है सबको मिक्स कर लो, आपको ऊपर एक टायर जैसा बनेगा, यहाँ पे नीचे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसको भी मिक्स कर दो, नीचे एक टायर जैसा बनेगा। क्लियर है? वैसा ही नीचे जो है इनको भी मिक्स करो। Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. And this type of this representation is also called as Haworth projection. सर या बताओ अपूर्वा। सर ये ऐसे क्यों रिप्रेजेंट किया है ये मेरे को? मैं आपको समझाने के लिए रिप्रेजेंट किया बस। ये जो pz ऑर्बिटल्स है they are perpendicular to the xy plane ना, so pz ऑर्बिटल्स दिखाया, ये सब अपने आप में मिल रहे हैं ना। रेजोनेंस का मतलब क्या है, वो सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो है अपने आप में कंबाइन हो रहे हैं। सो सारे कंबाइन होके ऊपर एक सर्कुलर डेंसिटी बना, नीचे एक सर्कुलर डेंसिटी बना, वैसा बता रहा हूँ। रिंग है, उसके ऊपर एक टायर ऐसा घूम रहा है, नीचे एक टायर है, इस टायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेटिंग। इज दिस क्लियर? हाँ सर। अभी समझ में आया? यस। Okay, so this is this conjugate system is pi alternate pi. एक बार देखो, pi alternate pi alternate pi alternate pi. You are having all the hybridizations of the carbon are sp2 because each and everything are forming one pi bond. सबके ऊपर pz 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 है. All the pz are combining among themselves to form two cylindrical ties. Cylindrical ने circular ties. Okay. This is the first conjugate system. Let us go to the next conjugate system. Second. ये भी अभी देखा हमने, pi alternate positive. Pi alternate positive. We have taken the example as, अभी कौन सा example लिया pi alternate positive के लिए? allyl carbocation लिया ना? CH double bond CH bond CH2 positive, pi alternate positive. और एक एग्जांपल उसमें तो मैंने आपको दिखा दिया, और एक एग्जांपल यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पाई बॉन्ड, सो इसमें भी रेजोनेंस होगा, पाई अल्टरनेट पॉजिटिव। ओके, क्या करना है, ये जो पाई बॉन्ड है डायरेक्टली यहाँ पे कर दो, नेगेटिव अल्टरनेट पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। सो डायरेक्टली ड्रॉ द स्ट्रक्चर। इफ यू आर फॉर्मिंग मोर नंबर ऑफ चार्जेस इट इज अनस्टेबल, सो वो चार्ज बनाएंगे ही नहीं। सो ये यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए ये पाई बॉन्ड को ऐसा करो, तब क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर कभी भी ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। जस्ट द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर एनालाइज किया तो
you will get यहाँ पे एक +2/2, यहाँ पे एक +2/2, एंड वो जो पाई इलेक्ट्रॉन से ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. This will be the actual structure. Is this clear? Yes. Yes. Okay. So ये तो 5/2 होगा ना? 1.5 रहेगा. सही है. Okay. हाँ सर. Next, third system. पाई alternate पॉजिटिव होना यहाँ पे नेगेटिव करते हैं. पाई alternate नेगेटिव. Very important to understand now. Example, let us take allyl carbanion. Allyl carbanion. Allyl carbanion मतलब क्या होगा? CH2 double bond CH bond CH2 negative. Okay. Tell me the hybridizations of carbons. Quick. First one is sp2, sp2, sp3. sp2, sp2. ओके. ये भी sp2 क्योंकि एक पाई बॉन्ड है. इस कार्बन का बताओ. sp3. sp3. If you are saying sp3, it is the right answer क्योंकि sp3 आपको बताना चाहिए. कार्बन का outermost electrons, everyone quick fast. 4. 4. Okay. 4. Negative charge मतलब you are adding an electron. Yes. Out of those 5 electrons, bonds कितना बना रहे? 3. So कितने electrons बचा? 2. So lone pairs कितना हुआ? 2. 1. 1 पेयर में. lone pair 1. bond pairs कितना हुआ? 3. So electron pairs कितना हुआ? 4. 4. So sp3 जो है ये expected है. Everyone, very important. sp3 expected है. But होता क्या है? This carbon also we will make it as sp2. Reason समझते हैं everyone. Let us try to understand. sp3 मतलब what is the geometry? Tetrahedral. Tetrahedral. Yes. Okay. sp3 and hybrid orbitals कैसे रहेगा? Hybrid orbitals का shape ऐसा कुछ बना देना हम. हाँ. This is the shape of hybrid orbital. Everyone, please concentrate. Don't ask me question for next 5 minutes. CH2 double bond CH bond CH2 यहाँ पे negative दिखाया and I am saying that I am making the hybridization as sp2. If I am making that as sp2, I will be having a pz orbital. Or I am asking you people to put the negative charge. A negative charge is nothing but 2 electrons. खुद का इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया इसलिए नेगेटिव चार्ज हुआ. ओके. सो अगर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके. इफ आई एम मेकिंग दिस एज sp2 रख के नेगेटिव चार्ज को प्योर pz ऑर्बिटल में रख रहा हूं, तो सभी लोग नेगेटिव चार्ज को प्योर p ऑर्बिटल में रख रहा हूं, तो तब क्या होगा? दिस ऑर्बिटल इज पैरेलल टू दिस. एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड. इफ यू आर मेकिंग sp3, there won't be any parallel orbital. If you are not having a parallel orbital, the electrons cannot jump. यहाँ पे पैरेलल ऑर्बिटल होने की वजह से या सिमेट्रिक ऑर्बिटल होने की वजह से ये जंप कर सकता है. जंप करने की वजह से होगा क्या? एवरीवन अंडरस्टैंड दिस. जंप करने की वजह से ये यहाँ से यहाँ पे आएगा. अभी कार्बन 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता. ये करो तो क्या होगा इस साइड? सो यू विल बी हैविंग CH2 minus CH double bond CH2. I am making that to participate in resonance.
if I am making that to participate in resonance, the negative charge is distributed on 2 carbon atoms. Which is more stable? नेगेटिव चार्ज एक ही ऑर्बिटल के अंदर sp3 ऑर्बिटल के अंदर रह गया वैसा मोर स्टेबल रहेगा, या इसको pz ऑर्बिटल में रख के इसको डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूँ वो ज्यादा स्टेबल होगा? डिस्ट्रीब्यूट करना। उस पर्टिकुलर रीजन के वजह से हम क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को प्योर ऑर्बिटल में ही इसमें रखते हैं। सो वी विल मेक द हाइब्रिडाइजेशन एज sp2 ओनली। sp3 कर दिया तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। सो ये यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अभी क्या करना है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक यहाँ पे शिफ्ट करो, उसी टाइम पे यहाँ से एक यहाँ पे शिफ्ट कर दो। ओके यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होने से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में बॉन्ड है। इस स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं ऐसा किया। आई एम नॉट शोइंग ए स्ट्रक्चर विद ग्रेटर नंबर ऑफ चार्जेस। ऐसा कुछ कर सकते थे, यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, उसके बाद इन दोनों के बीच में बॉन्ड है। उसके अलावा पहले स्टार्टिंग में ही बॉन्ड बना दो ना, because structures with more charges are not significant contributors to the resonance hybrid. Is this clear? Yes. So यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हुआ, यहाँ पे एक, अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ पे नोट जैसा लिख रहा हूं मैं वो पॉइंट को। Resonance stabilized carbanions are sp2 hybridized. Okay, is this clear everyone? Now you can ask me doubts. If you have any doubt, tell me. सर Yeah, सर अभी भी एक जो फर्स्ट कार्बन है, अब पहले लास्ट sp3 था, फर्स्ट वाला भी sp3 हाइब्रिडाइज ही है ना, तो डिफरेंस क्या हुआ स्टेबिलिटी में? मैं sp3 कहा किया, इसको sp2 किया ना, sp3 होना चाहिए था, sp2 रख रहा हूँ। पर सर अभी फर्स्ट कार्बन का sp3 हो गया ना हाइब्रिडाइजेशन। sp2 ना, ये भी sp2 सब sp2 है ना। तो सेकंड वाले केस में किस में? नीचे जो सेकंड केस बना है वो CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2 ये वाला हाँ सर। हाइब्रिडाइजेशन sp3 कहा, ये भी sp2 ही है, सब sp2 ही है ना। सर वो मतलब आपने sp2 कैसे किया एक बार समझा। sp2 रखा तो देखो, the logic is if it is sp2, the lone pair will be present in, lone pair मतलब ये negative charge, the negative charge will be present in pz. Resonance कब होता है? If you are having symmetric p orbitals. Okay, अगर ये negative charge जो है, if it is not present in symmetric pz orbital, it cannot jump. sp3 में लेके चला गया उस नेगेटिव चार्ज को मैं, आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन किया। Okay, I am putting the negative charge in sp3 hybrid orbital. Then you don't have any orbital which is parallel to this. If you are having an orbital parallel to this, then only it can jump. sp3 में रख रहा हूं तो jump नहीं कर पाएगा वो। समझ में आया? देखो, एग्जैक्ट और एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के लिए एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, p के अंदर
2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके एवरीवन, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? और एक इलेक्ट्रॉन आया, कार्बन माइनस हुआ, 2p3 कर लेते तब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ओके अभी होता क्या है, आई नीड टू डू हाइब्रिडाइजेशन ना, sp3 जैसा कर रहा हूँ। sp3 जैसा किया तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। rather than that what I'm doing is, what will exactly happen is, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होगा, which will lead to formation of, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड ये जो है, ये मैं क्या मान रहा हूँ, दिस इज, मैं मान रहा हूँ ये pz है। अभी pz के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके एंड आई एम मेकिंग द हाइब्रिडाइजेशन एज sp2। ओके दीज 3 ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स, एक इस कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ। तो समझा? एंड ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसको pz के अंदर रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि ये तीनों पैरेलल में रह सकता है, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो हमारे पास स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा ना। एक कार्बन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, वो अच्छा है, या 2 कार्बन के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट होना बेटर है? कार्बन डिस्ट्रीब्यूट होना बेटर है ना। ये डिस्ट्रीब्यूट तभी हो पाएगा जब इसका भी pz के अंदर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो, क्योंकि सब पैरेलल होना चाहिए, ये कंडीशन है। सारे बिल्डिंग साइडवाइज है तो तब इधर से इधर मैं जंप कर सकता हूँ। एक बहुत नीचे है, एक ऊपर है, तब मैं जंप किया तो क्या होगा, टूट जाएगा पेड़। ओके समझ में आ रहा है? मतलब sp3 हुआ तो वो सिमेट्री में नहीं होगा। sp3 हुआ तो सिमेट्री में नहीं होगा। pz का sp3 हुआ तो pz का एग्जिस्टेंस ही खो गया ना। हाँ pz रखना पड़ेगा यहाँ पे भी sp2 अभी भी वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इधर भी वो sp2 है। Throughout every time it will be sp2 hybridization only. You should not make that as sp3. रेजोनेंस में लेके जाने के लिए मैं ऐसा किया वो sp2. Hence I am saying resonance stabilized carbanions are sp2, or else in general if you are taking this molecule, concentrate CH3 CH2 नेगेटिव, इसमें ये sp3, ये भी sp3 पहले से ही, इसको भी sp3 रहना पड़ेगा, क्योंकि sp2 रखने से फायदा कुछ नहीं है ना। इधर से इधर कुछ जंप हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे pz जब ऑर्बिटल नहीं है, इसको sp2 में रख के फायदा क्या है, इधर जंप ही नहीं है ना। Now this will be sp3, here we will be making it sp2. Very important, understand this. And we are doing this just to explain the stability of the molecule. सर वो सिर्फ इसी एग्जांपल के लिए वैलिड है ना? इसी एग्जांपल के लिए नहीं, जब भी तुमको ये अल्टरनेट पाई अल्टरनेट नेगेटिव ना, ऐसा पाई बॉन्ड जब भी दिखता है, जंप करने के लिए ये अपना हाइब्रिडाइजेशन sp2 करेगा, जंप करने के लिए। In all the cases where you see pi alternate negative charge, all the cases, मतलब इस वाले केस में भी। और एक एग्जांपल शो करता हूँ। नेगेटिव, सो इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, इस कार्बन का you need to put that as sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2 रहा तो तब pz you can have that symmetrical and there can be jumping of electrons to attain stability. ये यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया, वापस जंप करवा के आप लोग यहाँ करके ये वापस लेके आ सकते हो। हाइब्रिड क्या हो जाएगा,
दिख रहे हैं आपको हाइब्रिड में और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हुए? हाँ सर। बॉन्ड बॉन्ड यहाँ पे -2/2 हुआ, यहाँ पे -2/2 हुआ। समझा? Yes, sir. हाँ सर। अब पूछो आपको कुछ डाउट है तो। Sure. या सर वो हाइब्रिडाइज मतलब जो है उसमें वो जो आपने और पी ऑर्बिटल्स ड्रा किए वो पी वाई है पी जेड? किसमें? ये वाला? हाँ सर। These are PZ. I'm considering this as PZ. I'm considering this as Z axis. सर फिर वो बाकी के कार्बन्स में पी वाई तक के इलेक्ट्रॉन से पी जेड में कैसे आया? क्या चीज क्या? मतलब जिसमें नेगेटिव चार्ज है उसमें हमने एस से इलेक्ट्रॉन्स लेके पी जेड Z के अंदर? हाँ, लेकिन बाकी के कार्बन्स में नहीं है ना। बाकी के कार्बन्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये पाई बॉन्ड बन रहे तो पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फाउंड बिटवीन प्योर ऑर्बिटल ना। इसके अंदर ऑलरेडी एक बॉन्डिंग है ना। लेकिन वो ये पी वाला होगा ना, पी जेड में कैसे? पी वाई क्यों होगा? अब पहले फिर से स्टार्टिंग पे आया तुम। मैं एस पी एक्स यहाँ पे PY देखो, ये एस पी एक्स और पी वाई ले रहा हूं तो इसका ऑर्बिटल्स किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे तो इसका ऑर्बिटल्स भी किस प्लेन में रहना पड़ेगा? एक्स वाई। एक्स वाई प्लेन में ही रहना पड़ेगा। सो इसके ऊपर कौन सा बच गया? पीजेड बचा। ये इसके साथ पाई बॉन्ड बना रहे तो इसके ऊपर भी कौन सा होना चाहिए? पीजेड होना चाहिए। समझा चैतन्य? नहीं सर। This is having sp2 hybridization and I am saying that इसके pz में नेगेटिव चार्ज है। ये क्लियर है? हाँ सर। सो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कौन कौन गया? s px और py गया। हाँ सो इस कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस प्लेन में है? xy प्लेन में है। यस। This carbon is forming a sigma bond with this carbon. यस सर। If this is having its orbitals in xy plane, in order to form a sigma bond with this carbon also must have orbitals in the same xy plane, तभी तो head on overlap होगा। उसका हाँ। ऑर्बिटल्स दूसरा कुछ और प्लेन में तो हेड ऑन ओवरलैप कैसे हो सकता है बॉन्डिंग के लिए? समझा? हाँ सर। सो इसके पास भी द हाइब्रिडाइजेशन हैज टू बी sp(x) py। सो बच गया ऑर्बिटल कौन है? pz। ये इसके साथ पाई बॉन्ड बना रहे हैं। पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फाउंड बिटवीन सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स, सो इसके ऊपर भी pz ही रहना पड़ेगा। यस। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, sir. थोड़ा ध्यान से सोचो। ओके, एवरीवन try to understand this. I'm leaving this here. Try to understand this. If you are having any doubt, you can come to center tomorrow. यहाँ तक जितना भी किया, यहाँ तक समझने के लिए कोशिश करो आप लोग पहले। ओके?